Okay. Class, we have started with the introduction to logistic management, where we have discussed in detail about what is logistic management, what are the long-term value, what is the why it is important. Later, we discussed in detail about the phases in logistic management and logistic development. Then we discussed about the evaluation and history of logistics and how global trade shifts. Then this was the evaluation where we have discussed the 1960s period, 1980s period, 1990s, 2000 and 2010 up till now. We have already discussed this in detail. Later we discuss about the objective of logistic management, how it is helpful in profit maximizing manufacturing process with smooth flow, etc. Then role of technology in logistics. And the last topic that we discussed was objective of logistics and role of logistics in a developing economy. So please put it on chat if you have any query and we will take it ahead as in when we complete. So the next topic is logistic management. So logistic management is a very important part of the supply chain management. And basically ये focus करता है the efficient flow of storage of goods, services and related information from point of origin to the point of consumption. So they are basically 7 R's जैसा आप screen पे देख सकते हैं that defines the success of logistics is often measured through the concept of these 7 R's or 7 rights we would say like right product, right quantity, right X. Okay, we will discuss this in detail. पहला आता है right product. So this means ensuring that the product being delivered is exactly what customer order or needs. So logistic plays a very important role in product identification, handling, packaging to prevent mix-ups. Accurate product labeling, inventory management system, and barcode tracking ensure that the correct product is selected and dispatched. Wrong product deliveries not only increase the return cost but also damages customer trust and brand reputation. So, for example, a pharmaceutical company, it must ensure that the hospital receive the exact medicine, जो medicine चाहिए, that is very particular because it directly deals with the health. And in the particular mg, like dosage जो उसकी required है या prescribed है doctor के through, delivers in a similar looking product and could have a serious consequences अगर ये नहीं पूरे. So this is basically the right product. Next is right quantity. So delivering the correct quantity ordered, neither more nor it should not be more, it should not be less, and it is essential for overall operational efficiency and customer satisfaction. So oversupplying ties up working capital and warehouse space. So undersupplying may lead to the production habits or unsatisfied customer. Accurate or demand forecasting, stock control, and automated order system helps achieve the balance. So for example, if a retailer, कोई एक retailer है उसने 500 unit of skin care product order किया है, right? So the logistics system must make sure that the exact quantity is picked and it is packed and it is shipped. ठीक है, तो राइट क्वांटिटी हो गई है, मतलब जितनी क्वांटिटी उसकी ऑर्डर की गई थी. फिर होता है राइट कंडीशन. सो गुड शुड रीच द कस्टमर इन अ परफेक्ट कंडीशन, राइट? जैसे कोई भी अगर प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है, चाहे वो ईटेबल हो या फार्मा हो या फिर स्किन केयर हो या फिर कार हो, इट शुड ऑलवेज रीच टू यू इन द राइट कंडीशन, नॉट डैमेज, no spoiling and no defect. So proper packaging material plays a very important role. Like temperature control, logistic and careful handlings are very important. So quality check at dispatch and delivery point ensure collection standards are met. Logistic provider use shock proof packaging and protection containers for fragile or perishable goods. So for example, fruit, vaccines or cosmetic must be transported under specific temperature and humidity condition to maintain the quality. ठीक है, जैसे वैक्सीन होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, तो उसके लिए यू नीड टू कीप इट इन अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर. तो ये सब चीजें आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट देन ओनली द कंडीशन विल बी गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. फोर्थ आपका आता है राइट प्लेस. So delivering goods to a correct destination when they are needed is another very important aspect. So logistic management ensure that accurate route planning, address verification, and selection of the best transport mode, road, rail, sea, or air is very important. So advanced GPS tracking systems allow real-time visibility of the shipments. Warehousing network are strategically located to minimize delivery distance and time. So for example, कोई online order है, it must be delivered to the correct customer address,
not to nearby branch or warehouse by mistake. राइट, तो ये राइट प्लेस होता है द राइट टाइम. फिर आता है नेक्स्ट आपका राइट टाइम. सो टाइमली डिलीवरेबल ऑफ अ गुड एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. लेट डिलीवरीज कैन लीड टू प्रोडक्शन डिलेज, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, और कस्टमर का लॉस हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है. तो राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजर यूज शेड्यूलिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड जस्ट इन टाइम सिस्टम टू ensure the punctuality. Seasonal and time sensitive products like fashion goods or event supply depends on heavily or timing. For example, delivering winter clothing in December, for example, has value. But अगर आप उसको अप्रैल या मई में डिलीवर करोगे तो फिर then it does not hold the same value. सो इसका मतलब राइट टाइम पे होना चाहिए, राइट. फिर सिक्स आपका आता है राइट कस्टमर. So the product should reach the intended customer or users, ensuring accuracy in documentation and communication. So making delivery can lead to a loss, legal issue, poor customer experiences. So integration between logistic and customer relationship management system help validate order details. So for example, in B2B logistics, so goods events for ABC Pharma limited should not go to ABC Healthcare Limited. So ये बहुत ही you have to be very careful when it comes to right customer. Okay, even the names बहुत कभी कभी similar होते हैं. You should not make that mistake and uh, should be careful. Okay, and then आपका last आता है right cost. So delivering at the right cost meaning maintaining the cost efficiency while ensuring services quality. Logistic aims to minimize transport, storage, handling, and administrative expense. Cost efficiency can be achieved through route optimization, economies of scale, and technological integration. So the goal is not just to deliver cheaply, but to deliver value, balancing cost and customer satisfaction. तो इसका जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि यूजिंग सी फ्रेट मे बी चीपर देन एयरवे, सो बट डिलीवरी टाइम इज वेरी अर्जेंट. सो आपको देखना पड़ेगा कि टाइम भी बैलेंस रहे और कॉस्ट भी बैलेंस रहे. सो दैट्स हाउ यू शुड बी. सो इन बेसिकली ये 7 आवर्स हैं विच इज यूज टू यू नो हेल्प्स इन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. पहला था राइट प्रोडक्ट, तो मतलब डिलीवरिंग द करेक्ट प्रोडक्ट at correct customer requirement, the right quantity, right cost, right customer, right time, right place, and right cost. Okay. So इसका हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यूज भी करते हैं. सो लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन entails a number of consideration including choosing ideal vendor that are willing to offer transportation services, choosing the most cost effective transit route, identifying the most capable delivering system, managing similar processes with the aid of software and IT tools. So unwise choices in logistic management cause a slew of problem. Buyer disappoint via product of failed overdue orders, for example. Another problem of the product damage caused the reckless transportation, तो poor logistic की वजह से. करेक्ट. सो इसमें क्या क्या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आता है? Components. So logistic administration entails the large number of person and pieces being transported by land, air, train या sea. So suppliers, shipping companies, packages, sellers, and carriers are the only some of the individual that may come into touch with a single object. So planning, inventory control, selecting the loading document, and transportation are the major components of logistic management. फिर planning is very important in this because planning like it's very important part of the logistical phase since it ensures that all the operation in the supply chain are organized. So it's used to develop the manage the logistic network, so to guarantee the product get where they need to go accurately and efficiently. फिर इसमें important है inventory. तो inventory amount of maintain ensure that the customer needs them are met. Stock carrying expenses are often kept at a low by a logistic operator in order to prevent inventory prices from being too large. Next is selecting and packaging. So keeping track of all the product and suppliers and packages facilities guarantee the shipments are shipped as scheduled. Many of the components are used to ship an order should be coordinated and mechanism in the place ensure the operations run smoothly.
Period transport, the most difficult and expensive aspect of the operation is transporting items from start to finish. The delivery of product necessity, preparations and assistance. The method does not stop after buyer complete a purchase. क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो जब तक चलता है जब तक द प्रोडक्ट इज completely delivered to the consumer, not even to customer जो consume करेगा उस product को. So the shipment aspect has become very more complicated as a result of the e-commerce industry. E-commerce reportedly generate more than $500 billion in revenue in the United States. So next topic है inventory management. So inventory management में there are several aspects that basically affect the inventory management. पहला है obtaining information. So knowledge is continuously flowing in the logistic process. The software allows for constant real-time alerts of whether an order is in method. The utilization of data help those in supplying chain to maintain track of the packages to help control production. So as market get increasingly complex, data-driven logistic can only expect. इसमें functions होते हैं. Logistic is more method of transporting product across company supply chain. However, this method involves a variety of tasks that must be carefully handled in order for the organization supply chain to be reliable and productive. तो प्रोसेसिंग ऑर्डर में आपका आएगा सबसे पहले इट इज एसेंशियल रोल इन लॉजिस्टिक प्रोसेस फंक्शन अ बायर बाइंग orders to a seller is very crucial legal instrument in the contract between the two parties. So the paper includes the product definition or technological requirement as well as the price, shipping date, payment condition. So inventory management जो है वो basically it entails um, uh, maintaining sufficient inventories to satisfy consumer demand while keeping the carrying expense to minimum. It is effectively a juggling act of delivering outstanding customer support and preventing the sacrificing market and share the expense of doing so. Inventory is the worst order offender in any company's total supply chain because of the high holding expense which cuts into earning transportation loss. The damage हो गया या फिर टूट गया आपका product, so इससे there could be a loss, and depending on the item the overall expense of holding inventory each year ranges from 10 to 25% of the overall. ठीक है, so the storage of the finished item before they are sold is known as warehousing. मतलब आपके जो वेयर हाउस होता है उसमें स्टोर करते हैं, एंड देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज. द सक्सेस ऑफ कंपनीज एडवर्टाइजिंग इज डिटरमाइंड बाय द राइट वेयर हाउसिंग जजमेंट. इन टुडेज एनवायरनमेंट वेयर हाउसिंग इज रिगार्डेड एज अ स्वैपिंग फैसिलिटी. तो द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर हाउसिंग डिसीजन. पहला है पोजीशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, क्वांटिटी ऑफ वेयर हाउस डायमेंशन, लेआउट ऑफ द वेयर हाउस, द फ्रेमवर्क डिजाइन, द वेयर हाउस ओनरशिप. ठीक है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में आपका आएगा. ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट फ्रॉम द सोर्स टू द कस्टमर. When a consumer make an order, if the purchase is not complete before the items are physically shipped to their houses, various forms of transportation are used to transfer items physically. In the case of mass consumed, where low unit price are purchased and goods, the share of logistic cost ranges from 65 to 70%. So firms choose modes of transportation depending on the country or region transportation system. When selecting a mode of the transportation, the most critical thing to remember is the expense. However, the urgency of the product at a customer end will also outweigh it. फिर आता है सिस्टम फॉर मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज. सो मटेरियल प्रोसेसिंग एंड टेक्निक्स जो होती है वो अफेक्ट करती है एट अ पेस विच प्रोडक्ट ट्रेवल अक्रॉस द सप्लाई चेन. राइट, तो ब्रांड डिस्ट्रप्शन, डिलीवरी डिलेज या कोई इंसिडेंट हो गया, लाइक इंक्रीज इन द रिजल्ट ऑफ स्लॉपी मटेरियल हैंडलिंग. तो इसका द अमाउंट ऑफ to be managed, the pace needed for the material transfer and the quality of services to provide the customer are all. सबसे पहले आता है इसमें from for optimum room usage, for fast movement of a packaging and logistics. So for optimum use usage में मतलब floor and cubic warehouse of a specific scale. For fast movement of product in the way out of warehouse, material handling system. Packaging and logistic in the physical delivery of a commodity, logistic or industrial packaging is critical component that affect the performance of the logistic framework. It is not the same as the food packaging, which is focused around marketing targets. However, the logistic packaging is critical for harm prevention, material management, and storage room efficiency.
फिर गैदरिंग डेटा, मतलब हम लॉजिस्टिक इज अ डेटा ड्रिवन प्रोसेस सो दैट इन्वॉल्व्स मूविंग इन्वेंटरी थ्रू सप्लाई चेन एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इंफॉर्मेशन, ओके, द यूज ऑफ आईटी रिसोर्सेज फॉर नॉलेज रिकॉग्निशन, एंट्री, स्टोरेज, ये सब. So this is more about inventory management and logistic management. These are and right cost, right quantity with right condition at the right place. Okay. So this we have studied in detail. And inventory management, कि आपकी जो इन्वेंट्री है किसी भी ऑर्गन आपके प्रोडक्ट की, हाउ आर यू गोइंग टू मेंटेन. सो इसमें यू हैव टू बी केयरफुल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यू आर रिसीविंग, तो यू मेक श्योर दैट प्रोडक्ट आर ऑल्सो गोइंग, so that there is no overstocking or understocking, and there is a tagged product so that you can check the status where it is at that moment, and for how long this product has been in your inventory, and what is your purchase order, etc. So these two topics we have covered. Next topic is logistic and competitive performance. Please, okay. So logistics and मतलब लॉजिस्टिक आपको पता है पूरा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ delivering a product to the customer or consumer, so it plays a very strategic role in achieving and sustaining companies competitive advantage in marketplace. So like you have to be on your toes. So it is not just about transporting good, it is about creating the value of customer through efficiency, reliability and responsiveness. For example, किसी प्रोडक्ट का एकदम मार्केट में डिमांड आया तो यू हैव टू बी वेरी quick to respond so that you can quickly provide that product at the right time. Okay, so ये सब चीजें you have to be in logistic. इससे your competition is, you will be high in the competition. So a well-managed logistics system ensure that the products are available at the right time, the right place with the right cost, which directly enhance a firm's competitive performance. So अगर हम competitive performance यहाँ पे देखें हम किस reference में इसको बोल रहे हैं, तो competitive performance refers to how efficiently a company perform in the market compared to its competitor. So it basically include करता है metrics such as customer satisfaction and loyalty. ओके, मार्केट शेयर आपका कितना है, आपकी कॉस्ट कितनी इफेक्टिव है और एफिशिएंस है, डिलीवरी टाइम और स्पीड आपकी कितनी है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन. सो लॉजिस्टिक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑल दिस एरिया. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिस्टिक एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस? पहला आएगा आपको कॉस्ट एफिशिएंसी. ओके, जैसे कॉस्ट एंड सर्विस लीडर आपको स्क्रीन पे फिगर में दिख रहा है, तो रिड्यूस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्रू रूट ऑप्टिमाइजेशन, लोड प्लानिंग एंड एफिशिएंट वेयर हाउसिंग. अगर आप अपना प्रॉपर प्लानिंग करेंगे एंड इफ द स्टॉक इज गेटिंग डिस्पैच एक बार में इंस्टेड ऑफ मल्टीपल डिस्पैच, तो ये सब तरीके से आप अपना लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी डिक्रीज होगी. फिर दूसरा होता है सर्विस लीडर. सो इम्प्रूव सेटिस्फेक्शन थ्रू टाइमली, एक्यूरेट एंड सेफ डिलीवरी. फिर स्पीड एंड रिलायबिलिटी. सो इंश्योर दैट द प्रोडक्ट रीचेस कस्टमर क्विकली विदाउट एरर. फ्लेक्सिबिलिटी होगा कि इट अलाउ कंपनीज टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली, जो भी कोई अगर चेंज हो रहा है तो उसमें. इन्वेंट्री मैनेजमेंट वी हैव ऑलरेडी study, तो it balances stock level to prevent shortage or excess, and information flow basically enhance visibility and coordination across supply chain. तो मतलब आपका अगर इन्वेंट्री में से प्रोडक्ट कम हो रहा है, एंड देन यू शुड ऑलवेज गिव अ विजिबिलिटी टू द सप्लायर सो दैट दे कैन प्रोवाइड द प्रोडक्ट एट द राइट टाइम. Okay. Now, logistic as a source of competitive advantage. So companies can achieve a competitive edge when logistic become very differentiator, offering superior value. तो इसमें क्या होता है, ऑपरेशनल एक्सेलेंस, कस्टमर इंटीमेसी, इनोवेशन एटसेट्रा. सो इसमें अगर हम बेसिकली अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक को आप देखोगे, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब रिसीविंग, परसीविंग एंड डिसमिसिंग इनपुट टू द प्रोडक्ट आर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिसमेंटिंग द इनपुट इनटू प्रोडक्ट. ऑपरेशंस में आपका आएगा ट्रांसफॉर्मिंग फीडबैक इनटू द फाइनल प्रोडक्ट. आउटबाउंड लॉजिस्टिक में जैसे नेम से पता लग रहा है कि कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू बायर. सेल्स एंड मार्केटिंग, एज वी नो, सेल्स इज बेसिकली selling a your product to customer or consumer, and marketing is all about advertising and other activities related, and customer service is like जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच गया है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप उसका इंस्टॉलेशन, अगर आपका प्रोडक्ट कोई इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, देन यू हैव टू बी ऑन योर टोज. ओके. सो अब जो आपको ये नीचे एक चार्ट दिख रहा है, तो इट्स अ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट चार्ट दैट में सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, राइट.
So efficient firm would have, often aim to obtain a role focused on both an efficiency and a value benefit. Right? Logistic management play a very important role in achieving those benefits. In certain sector, logistic cost around for such large percentage of overall cost. Okay. And then अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें फॉर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का, तो अमेजोन का अगर हम लेते हैं, बिकॉज अमेजोन इज वेरी रेप्यूटेड, सो अमेजोन का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई इन लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. जो आप कोई भी चीज़ अमेजोन से ऑर्डर करते हो तो इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल, the cost is always comparatively best and the product is always good. अगर बाई चांस आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है तो रिटर्न पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी गुड. सो इट एडवांस फुलफिलमेंट सेंटर, लास्ट मिनट आप डिलीवरी कर देता है. बहुत छोटे छोटे विलेजेस ऑल्सो हैव द डिलीवरी ऑप्शन एंड प्रिडिक्टिव इन्वेंट्री एल्गोरिदम है. राइट. और अगर आपका प्राइम है तो देन यू कैन हैव अ सेम और नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑल्सो. तो द स्पीड एंड रिलायबिलिटी हैव सेट न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर कस्टमर expectation globally, giving Amazon a clear competitive edge. Okay. अगर एक और एग्जांपल हम इसका ले तो डेल टेक्नोलॉजीज का. सो डेल रिवॉल्यूशनाइज द कंप्यूटर इंडस्ट्री विद इट्स बिल्ड टू ऑर्डर मॉडल. मतलब आपको बने बनाए स्पेयर पार्ट्स और या फिर एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम. सो थ्रू एफिशिएंट लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन डेल मिनिमाइजेस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. इनके इन्वेंट्री में बहुत कम रहता है. तो फॉर एग्जाम्पल टू स्टॉक योर प्रोडक्ट इन इन्वेंट्री यू नीड स्पेस एज वेल, राइट. तो वो स्पेस का भी कॉस्ट होता है. तो जितना आपका इन्वेंट्री में लिमिटेड आइटम होगा उतना आपका स्पेस कम लगेगा, उतना देन यू हैव टू रेंटेड प्लेस कम रहेगी. तो ये भी आपका एक अल्टीमेट एडवांटेजेस है. And this responsiveness helped Dell maintain a lower price as faster delivery as compared to the competitor. फिर तीसरा आपका एग्जाम्पल आता है Zara. Zara एक फैशन ब्रांड है. Zara logistics system is built on speed and flexibility. It design, manufacture and deliver new fashion item store within 2 to 3 weeks, much faster than most rival. Its strong logistic network allows Zara to respond quickly to changing consumer behavior and customer preferences, gaining a time-based competitive advantage. एंड फोर्थ एग्जाम्पल जैसे आप लो टोयोटा का. सो टोयोटा इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो इसमें जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक अप्रोच मिनिमाइज वेस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट. तो मतलब ये इंश्योर करता है दैट पार्ट्स अराइव एग्जैक्टली व्हेन दे आर नीडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो दिस सिस्टम इम्प्रूव एफिशिएंसी, स्टोरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाती है और ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस में आपको बेहतर होता है. So इसके benefits of logistic and competitive performance are reduce operation cost, improve customer satisfaction, loyalty, faster response time होता है, increase productivity, etc. So basically, in order to conclude the logistic and competitive performance, efficient logistic is not just a support function; it is strategic weapon for achieving supplier superior competitive performance. The company that invests in modern logistics system, technologically and skill personal gain. Okay. So now coming to the distribution related issue and challenges. Okay. So logistic face a lot of distribution related issue. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. मतलब अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं. आप अगर आप खुद भी कॉमन सेंस लगाएं इन जनरल तो प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकता है, राइट. सो जो स्क्रीन पे दीज आर द जनरल चैलेंजेस दैट एनी कंपनी फेसेस. ओके. तो सबसे पहला आएगा इसमें कॉस्ट ऑफ पेट्रोल. तो फॉर एग्जांपल आपका कोई भी प्रोडक्ट किसी भी, चाहे वो कार के थ्रू जाए या फिर ट्रेन के थ्रू जाए या फिर थ्रू एयर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम तो पेट्रोल का कॉस्ट आप किस स्टेट में है, आप किस कंट्री में, इसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर कॉस्ट हाई है तो ऑफ कोर्स आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और कम है तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. तो बेसिकली फ्यूल का जो रेट होता है इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिलेटेड टू द कटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो हायर गैसोलीन रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव अप द फ्यूल चार्जेस. जैसे अगर आप अरेबिक कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड फ्यूल आर लिटिल लेस, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी लेसर, राइट. Next है weak company procedures. So despite the need for modern technology, keeping up with emerging developments and deployments in business method have become a rising obstacle for a logistic industry. Although taking advantage of these new opportunities can sound appealing, integration and onboarding may be challenging.
Okay. Next is lack of customer service. Customer demands maximizing insight into the state of their distribution at all stage. So nowadays, package position is in intertwined as a social network. So in reality, customer जो prefer करता है have risen, so their willingness to pay for a quick delivery. मतलब आप देखते हो कि Amazon पे if you want a quick delivery, you have to extra pay a little, 50 rupees or depending on the location. तो लोग पे करते हैं, तो lack of customer services, तो ये इशू आ जाता है. फिर आता है इकोनॉमी इफेक्ट. ऑफ कोर्स अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तो देन परचेजिंग पावर लोगों की ज्यादा होगी. एंड देन फ्यूल का भी इस पे डिपेंड करेगा. आपकी कंपनी अगर इट्स गोइंग थ्रू अ रफ पैच, अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन है या फिर जॉब्स नहीं है, कंपनी की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो फिर लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, तो लोगों का चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे. राइट. देन शॉर्टेज एंड द रिटेंशन ऑफ ड्राइवर. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इशू. अगर ड्राइवर ज़्यादा अवेलेबल है देन यू विल नॉट हैव मच प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूटिंग. बट अगर ड्राइवर का शॉर्टेज है एंड आपके पास प्रोडक्ट आपका रेडी है बट आपको डिलीवर करने के लिए ड्राइवर ही नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैन हैंडलिंग प्रॉब्लम. बट इसमें दैट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री. फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे गवर्नमेंट के अगर ज़्यादा इंटरवीन करते हैं या फिर अगर गवर्नमेंट के रूल बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन आया था ओवरनाइट, या जीएसटी के भी रेट्स कम हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन को. राइट. सो ये सब कंट्री टू कंट्री, अगर वॉर चल रही है वहाँ पे नो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है. फिर नेक्स्ट है कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट. सो कुछ अगर कुछ कुछ कंट्रीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट पोल्यूशन रिलेटेड थिंग्स, तो दे विल नॉट अलाउ यू एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. एंड देन तो और कुछ कंट्रीज आर नॉट सस्टेनेबल, सो उसमें कम प्रॉब्लम होगी. देन लास्ट इज टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेटेजी. So although the market recognize and embrace all of these innovation advantages, there are still concern over how the company compensate for them. Okay. So these are the distribution related issue. Of course, there are more, but these are the most common one and which are almost faced in all type of industry. Just put it on chat if you have any query. Please explain inventory management. Chandrasekhar. So inventory management is like आप मैं बहुत अब ब्रीफ में समझाऊंगा बिकॉज डिटेल में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज लाइक तो इन्वेंट्री होल्ड होती है आपकी कंपनी. फॉर एग्जांपल आपका फार्मा प्रोडक्ट है. राइट. तो आप उसकी इन्वेंट्री मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया है और अभी वो कस्टमर ने नहीं खरीदा है, तो इसके बीच में वो जो रहेगा इट विल बी इन द इन्वेंट्री. राइट. अब नाउ आपको अपना इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, बिकॉज एक प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक इन्वेंट्री में नहीं रहना चाहिए. इट्स नॉट अ गुड साइन. मतलब उसकी डिमांड कम है या हमने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस ज़्यादा कर दिया है या फिर वो प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है. राइट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट मैनेजमेंट. इसके लिए उस पर क्यूआर कोड लगाया जाता है ताकि उसका जो मूवमेंट है वो हमें पता लगता रहे कि ओके इफ दिस इज इन दिस स्टेज इतने टाइम से, तो व्हाट इज द इशू. एंड फिर अगर बिकॉज कुछ प्रोडक्ट मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैव एक्सपायरी डेट, तो वो फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर ज्यादा देर रहेंगे तो देन ऑल्सो इट्स एन इशू. ओके. सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इकोनॉमी इम्पैक्ट रेहान. यस, इकोनॉमी इम्पैक्ट एज इन लाइक जस्ट एज आई एक्सप्लेन, अगर कम कंट्री में इकोनॉमी इज नॉट गुड एंड जॉब्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स लोगों का परचेजिंग पावर कम हो जाता है. लोग चीज़ें अपनी सिर्फ बहुत जो ज़रूरत की होती है वो खरीदते हैं. सो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा. एंड अगर फॉर एग्जांपल जैसे टोल होते हैं, अगर टोल ज़्यादा है देन योर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इफेक्टेड. रोड कंस्ट्रक्शन आपकी कैसी है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा. सो ऑल दिस थिंग आर रिलेटेड टू इकोनॉमी. राकेश कुमार इज आस्किंग व्हाट इज वीक कंपनी प्रोसीजर. सो वीक कंपनी प्रोसीजर मतलब जैसे अब एआई का जमाना है, तो इट इज लाइक यू हैव टू एवरी डे यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू इवॉल्व. बट कुछ कंपनी के प्रोसीजर आर सो लेड बैक कि दे आर वेरी ओल्ड थिंकिंग. वो नहीं अपने आप को अपडेट करेंगे. सो ऐसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से दे डोंट अपडेट. सो दीज आर लाइक वीक कंपनी का प्रोसीजर. फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज होती हैं जो ओल्ड थिंकिंग की होती हैं. राइट. सो दे विल नॉट अपडेट देमसेल्फ. जैसे जेंजी का वर्क ऑफ स्टाइलिंग है, सो दे आर लिटिल डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई कंपनी के प्रोसीजर इतने वीक होते हैं. दे डू नॉट अडेप्ट एंड समटाइम्स इसी वजह से दे गेट आउट ऑफ द मार्केट एंड समटाइम्स
They will take time to adapt and slow. Okay, Rakesh, I hope that is clear. Dimple Sharma, inventory management के through, if customer has placed an order, then he or she can track by tracking ID or link. Correct. So वो आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, बट अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम लोग जो टैग लगाते हैं वो दैट विल बी के आपका प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के एकदम बाद किस, बिकॉज बहुत सारे फेसेस होते हैं तो डिपेंडिंग आपका प्रोडक्ट क्या है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर आपका इन्वेंट्री में कितना प्रोडक्ट रोज आ रहा है, कितना बिक रहा है, ताकि ओवर आपकी इन्वेंट्री ना भर जाए और अंडर भी ना रहे, बस कुछ चीज़ों की सडन डिमांड आती है, तो यू हैव टू बी दैट क्लेवर. Okay, guys, I think it's a good Q&A session. Thank you so much for putting the questions. And let's take 2-3 minutes of break. It's 8:35. Let's regroup at 8:39, and then we can continue with the last two topics of this unit. Okay. It's just okay. The GI is saying something. Sir, as you say, GST prices go downward. So what is the coincidences for small level company of a retailer who sell the product? Now, as we say, prices goes downward, then what should we do? सो देखो, अगर जीएसटी का प्राइस कम हुआ है और ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट खरीदा है हाई जीएसटी में, सो ऑफ कोर्स यू मे फेस द लिटिल लॉस बिकॉज अब आपको सेल वो न्यू प्राइस पे करना पड़ेगा. बट अगर जीएसटी का प्राइस बढ़ा है और आपने लो जीएसटी पे खरीदा था तो यू विल हैव मोर प्रॉफिट, एंड अगर वो अपोजिट है तो इट विल यू विल हैव मोर लॉस. बट अगर जीएसटी कम होगा तो ऑफ कोर्स कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो आप वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा बिकॉज आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा. Okay. So this is how, all this thing affect the customer purchase power. Okay. And so she has asked about that thing, na, the where I explained कि अभी जैसे जीएसटी she has mentioned of car, कि जैसे कार का जीएसटी अभी कम हो गया है, so जो मैन्युफैक्चरर उनको लॉस होगा. So in the how what is the scenario in this? So basically when मार्क किसी भी व्हीकल का, जैसे आपने कार का लिखा है, कार का जीएसटी प्राइस अभी रिसेंटली गिर गए हैं, तो कस्टमर फील चीटेड इफ दे बॉट अप अर्लियर. मतलब आपका कहने का मतलब है दो, इसमें दो सिनेरियो, या तो जो कस्टमर ने जीएसटी के डाउन होने से पहले खरीदा होगा तो क्या वो चीटेड फील करेंगे, या फिर कंपनीज और डीलर्स को प्रॉफिट का लॉस होगा. सो द गोल इज टू फाइंड अ बैलेंस सोल्यूशन, राइट. सो इसमें क्या होगा कि सम कंपनी जैसे टोयोटा टेस्ला है, सो दे ऑफर प्राइस प्रोटेक्शन और बाय बैक गारंटी. जैसे कभी कभी कंपनीज, बिकॉज जो एक्सपेंसिव कार्स होती है उसमें होता है कि इफ अ कस्टमर ने कोई व्हीकल खरीदा है रिसेंटली एंड द प्राइस ड्रॉप्स इमिडिएटली, मतलब कुछ दिनों के अंदर ही, देन कंपनी कंपनसेट करती है. आप उसको प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, या तो फिर क्या, फिर वो जो आपको लॉस है उसमें थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स कटेगा एंड देन यू विल गेट. तो इसमें क्या होता है, कंपनी कस्टमर तो बहुत खुश रहता है, कंपनी थोड़ा सा लॉस फेल करती है, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑलरेडी उनका वो जीएसटी में गवर्नमेंट की तरफ से कट हो जाता है, या फिर कंट्रोल डिस्काउंटिंग. सो कभी कभी लिमिटेड डिस्काउंट ऑफर होते हैं, इन सब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सर्टिफाइड सीपीओ प्रोग्राम्स, तो इस टाइप के. मतलब बिकॉज कंपनी ऑलरेडी ऐसा नहीं कि वो जीरो प्रॉफिट पे सेल कर रही थी, राइट. सो दे आर ऑलरेडी सेलिंग, तो उनका वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट इट विल नॉट बी अ लॉस. ओके. सो ये तो थोड़ा सा बैलेंस रहता है बिकॉज ये इट्स अ डेमोक्रेटिक थिंग, सो ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ. So there's a question from iPhone. I don't know what's the real name is. It's showing iPhone about logistic and competitive performance in short brief, sir. So logistic मतलब the movement of storage of goods, राइट. कोई भी आपका प्रोडक्ट रेडी है, उसका मूवमेंट और उसका स्टोरेज फ्रॉम सप्लायर टू फाइनल कस्टमर. अब कस्टमर कैन बी कंज्यूमर, मतलब वो कंज्यूम खुद भी कर सकता है फिर वो और बेचेगा, राइट. कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस रिफर्स टू हाउ वेल अ कंपनी परफॉर्म्स एंड एज कंपेयर टू इट्स राइवल. ओके. Okay, I hope iPhone, I don't know what your real name is, but try to put your real name so that I can reply. Okay, guys, let's go to the next topic. I think it's good of a Q&A that we have done. The next topic is, oh, one second. Sorry, my bad. Distribution related, sorry. Distribution related issue we have already completed, and I think that's clear because I don't see much of a question. Next topic is physical distribution on management. तो अगर आपका physical distribution को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं.
ओके, सो इसमें आपको काफी सारे स्क्रीन पे वो दिख रहे होंगे. So physical distribution management, I will say PDM most. So it is a very important component of logistic and marketing management. So it focuses on movement of आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया फिनिश गुड, ताकि अब आपका प्रोडक्ट आपने बना के मैन्युफैक्चर कर लिया है एंड उसको अब आपको फाइनल कस्टमर के हाथ में पहुंचाना है. तो इस इज व्हाट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज. इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? सो इन ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड यू नो कंज्यूमर और कस्टमर. सो फिजिकल पीडीएम बेसिकली रेफर करता है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर. So it includes all activities related to storage, transportation, order processing, inventory management, जो जो आपके ऊपर से दिख रहा है मतलब स्क्रीन पे. So sometimes it is also referred as a outbound logistic as it deals with the outward movement. So its objective is to basically have a good customer satisfaction. So it ensures timely and accurate delivery to meet customer expectation, to minimize the cost. Cost कम होगी तो profit will be less, profit will be more, and the cost of the product will also be less, and then ultimately customer will be more attracted. So efficient order fulfillment मतलब reduce delay in order processing and improves. अगर आपको प्रॉपरली मैनेज है तो आपका डिले नहीं होगा कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के पहुंचने पे. देन मार्केट कवरेज, इट एंश्योर्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल अक्रॉस डिफरेंट रीजन. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, so faster more reliable delivery. सो की कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, सबसे पहला आता है आपका प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. तो मतलब इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से प्रोडक्ट आपका रेडी होके हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. नाउ इट इंक्लूड्स रिसीविंग, वेरीफाइंग एंड रिकॉर्डिंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर, फास्ट एंड एरर फ्री ऑर्डर, राइट. दूसरा आपका आता है इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्री में क्या होता है? इट रिफर्स टू द स्टोरिंग ऑफ गुड्स अंटिल दे आर नीडेड एंड फॉर सेल्स. अब आपका प्रोडक्ट जाकर रेडी होके वो वेयर हाउस में रखा गया, जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं. अब आपके पास वहाँ पे इट शुड बी एंश्योर दैट क्वालिटी उसकी सही होनी चाहिए, वो जगह ऐसी होनी चाहिए वहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ डैमेज ना हो, राइट. फिर आता है स्टॉक पाइलिंग, जिसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं. मतलब बैलेंस करना है इन्वेंट्री लेवल को टू मिनिमाइज द होल्डिंग कॉस्ट विच मीटिंग डिमांड. सो जैसे कभी कभी इकोनॉमिक जस्ट इन टाइम डिलीवरी होती है कि आपको इमीडिएट ऑर्डर आया है, तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी. फिर आपका डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन, अब आपके पास ऑर्डर आ गया है तो मोस्ट विजिबल एंड कॉस्टली एलिमेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज ट्रांसपोर्टेशन. इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ ट्रांसपोर्ट, जैसे रोड हो सकता है, रेल, सी, कुछ भी किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है. फिर फंक्शंस, जैसे मटेरियल हैंडलिंग, अब आपका जो प्रोडक्ट जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको आप हैंडल कैसे करेंगे? तो इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स यूजिंग इक्विपमेंट सच एज कन्वेयर बेल्ट और करेंस. ठीक है. फिर पैकेजिंग आ गया आपका, तो प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम द डैमेज ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट. गुड पैकेजेस ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रांडिंग, स्टोरेज एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस. कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लो, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम्स लाइक ईआरपी, जीपीएस एंड आरएफआईडी हेल्प्स इन ऑर्डर ट्रैकिंग. ओके, तो इसका हमारे पीडीएम का फायदा क्या है कि भाई ये इंश्योर करेगा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है सही टाइम पे. इट इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिड्यूसेस टोटल कॉस्ट, एनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड. सो अब जो जो फैक्टर इस पे इंक्लूड करते हैं, मतलब मार्केट, जब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड पे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं. ओके, सो दिस इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, पूरा हमने डिस्कस कर लिया ये सब चीज़ें क्या क्या इफेक्ट करती हैं, जैसे मार्केट फैक्टर्स, प्रोडक्ट फैक्टर, कंपनी, एनवायरमेंटल, गवर्नमेंट, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एग्जाम्पल आपको मैं अगर इसका दूं, जैसे कोका कोला एक कंपनी है. तो कोका कोला मैनेज करती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल, बिकॉज कोका कोला इज नॉट इंडियन, या सिर्फ वो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आप सोचिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा. सो वो करती है, इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज बॉटलिंग प्लांट, रीजनल वेयर हाउसेस, सब जगह उसके होते हैं, एंड लोकल डिस्ट्रीब्यूटर. तो कभी आपने उस प्रॉब्लम नहीं सुनी कोका कोला, यू कैन, आपको छोटे से छोटे शॉप, किराना स्टोर्स, या फिर इवन जो ये रोड साइड दिस पान वाले वो होते हैं, उसके यहाँ भी यू विल गेट. सो सोचिए इतनी बड़ी कंपनी है, इट इज ऑलवेज अवेलेबल. सो दिस इज बिकॉज दे हैव अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. सिमिलर फॉर amazon, amazon के भी आपको डिलीवरी, यू कैन गेट इट एनीवेयर इन द स्मॉल विलेजेस ऑफ इंडिया. ठीक है. सो अब इसका चैलेंजेस भी होते हैं भाई. कॉस्ट, फ्यूल का हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस, ये सब चैलेंजेस ये सब थे. ओके, so I think this is more about, so in order to conclude about the PDM, physical distribution management, it is not just about moving good, it is about strategically managing the flow of product to create customer value and competitor. तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े, सिर्फ ऐसा नहीं गुड मूव होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज रीचिंग एट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम.
Now we will discuss about okay, containerization in detail. You can put it on chat if you have any query about the PDM. ओके सो कॉन्टेनराइजेशन जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मतलब ये बहुत ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ लॉजिस्टिक. ये अभी रिसेंटली बहुत फॉलोड किया जाने वाला एक प्रोसेस है एंड इट इज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशन. सो इट रिफर्स टू method of transporting goods in standard container that can be easily transferred between different modes of transport such as ships, trucks and train without unloading and reloading in cargo. ये एक मतलब हमारा प्रोडक्ट है, हमने सारा प्रोडक्ट बना के एक स्टैंडर्ड कंटेनर में रख दिया है. अब हमें प्रोडक्ट निकाल के अंदर बाहर नहीं करना है, हमें वो कंटेनर ही पूरा यूज करना है एज अ होल. वो हमारा एक पूरा यूनिट होगा. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेनर. मतलब कंटेनर में उसको बोल दिया, जैसे आप स्क्रीन पे इसका नाम देख सकते हो, इट हैज बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द कंटेनराइजेशन. तो पूरे कंटेनर में करके एंड देन इट विल बी डिलीवर्ड. तो आपका एक तो प्रोडक्ट अच्छे से इसमें हैंडल होता है. अदरवाइज आप बार बार उसको अनलोड लोड करोगे कार्गो में तो टूटने की चांसेस ज्यादा रहेंगे, टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है. तो अल्टीमेटली इट इज वेरी गुड. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, कंटेनराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लार्ज स्टैंडर्डाइज्ड बॉक्सेस नोन एज कंटेनर टू पैक स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट गुड एफिशिएंसी. ओके, सो इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई? द कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय मैल्कम. इट वाज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर इन द 1950s, लेकिन ये ऑफ कोर्स ये टाइम के साथ इवॉल्व होता गया. सो बिफोर, इससे पहले गुड यू हैज टू बी लोडेड एंड अनलोडेड बाय पीस. वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, इट वाज स्लो, कॉस्टली एंड डैमेजेस के तो बहुत चांसेस होते थे. तो राइट, तो इसमें स्टैंडर्डाइज कर दिया. तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं कंटेनर के. कोई 20 फीट कंटेनर होता है, कुछ 20-40 फीट, कुछ हाई क्यूब कंटेनर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट यू आर टेलिंग. तो कंटेनर के कितने टाइप्स होते हैं? मतलब पहला होता है ड्राई स्टोरेज कंटेनर, जिसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल या फर्नीचर, जो मतलब जिसमें बिल्कुल भी हम ह्यूमिड या पानी नहीं बेयर कर सकते, हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. फिर आता है रेफ्रिजरेट कंटेनर, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिन, वैक्सीन जाती हैं. फिर आते हैं ओपन टॉप कंटेनर. ओके, देन फ्लैट रैक कंटेनर, टैंक कंटेनर, जैसे लिक्विड केमिकल गैसेस जाती हैं, किसी में कार जाती है तो उस हिसाब से होते हैं. कुछ ओपन होते हैं, ऊपर से खुले हुए, जैसे जो मशीनरी जाती हैं. या फिर वेंटिलाइज्ड होते हैं, जिसमें कॉफी बीन, बिकॉज कॉफी या इस टाइप की चीज हम ज्यादा क्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज वो फिर खराब होने के चांसेस होते हैं. प्रोसेस होता है, गुड्स आर पैक्ड एंड सील्ड इन द कंटेनर एट द फैक्ट्री. कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेल. एंड फिर वो आपको लोड करना है एक बार, और एक बार ही आपको सिर्फ उतारना है उसको. तो ये बार बार नहीं करेंगे. एडवांटेजेस तो इसके बहुत हैं कि इट्स स्पीड, एफिशिएंसी, इट रिड्यूसेस डैमेज, इट लोअर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट इज स्टैंडर्डाइज, सिक्योरिटी ज्यादा रहती है, ऑटोमेशन. बट आप सोचिए, इतना कुछ होने के बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है. क्योंकि स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि बड़ा कंटेनर लेना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी, राइट? तो वो आपका हाई इनिशियल कॉस्ट होता है. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए कभी कभी बॉक्स में रखने के लिए. आप बॉक्स में, जैसे अगर आप शिप के पास बॉक्सेस देखते हैं बड़े बड़े, तो वो आपको उसके लिए भी कुछ मशीन चाहिए, राइट? फिर एम्प्टी कंटेनर जो आपके रह जाते हैं, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? फिर स्मॉल शिपमेंट में ये नहीं काम आता है. स्मॉल शिपमेंट अगर आपका डिमांड है तो उसके लिए. सो अब अगर जैसे अमेजोन ग्लोबल लॉजिस्टिक देखें, तो अमेजोन यूज कंटेनराइज टू ट्रांसपोर्ट बल्क गुड बिटवीन कंट्रीज. अगर कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, फॉर एग्जांपल राइस, और हमें वो डिलीवर करने हैं गल्फ में, तो इट विल गो थ्रू कंटेनर्स, राइट? सो दिस इज व्हाट कंटेनराइजेशन इज. So this is basically that's it for today, I guess. And then okay, now we have 7 minutes, so we can take Q&A. Stockpiling. So inventory matlab, it refers to the regular amount of goods or material in company keeps on hand to meet the ongoing demand, right? सो इन्वेंट्री हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरा एक एक प्रोसेस होता है. प्रोडक्ट आते रहते हैं इन्वेंट्री में से, डिमांड आती है, जाते रहते हैं, एंड देन इट कीप्स ऑन मूविंग, राइट? बट स्टॉक पाइलिंग में होता है, इसमें एक्स्ट्रा, बिकॉज पाइलिंग आपको नाम से मतलब पाइल अप होना, तो पूरा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट आ जाते हैं. एंड इसका रीजन हो सकता है कि भाई आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, तो आप पहले से बना के रख लोगे. या फिर आपको लग रहा है इसकी डिमांड आ सकती है, तो आप बना के रख लोगे, राइट? या फिर कुछ नेचुरल, जैसे कोविड हुआ था, तो राइट, तो कोविड में ग्लिसरीन, सॉरी, इसके सैनिटाइजर के, मास्क के बहुत एक्सट्रीम एकदम से डिमांड आई थी. जो स्टॉक हमने बना के कंपनीज रख रही थी पहले से ही, ताकि शॉर्टेज ना हो बाद में. सो ये शॉर्टेज से बचने के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. तो इन्वेंट्री इज लाइक प्रॉपरली मैनेज्ड एंड स्टॉक पाइलिंग इज पाइल अप, से नाम से पता लग रहा है.
Dimple, I hope it is clear. No, no, stockpiling and black marketing are not same, Bhuvan. Stockpiling is a, जैसे मैंने आपको explain किया, black marketing, I think it's more into reference with the, uh, like, which is not legal and not legal as in not legal, but stockpiling तो मतलब it depends on the accumulating, जो पूरा आपने पाइल अप कर लिया है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, राइट, डिपेंडिंग ऑन एबीसी रीजन। बट आपका जो ब्लैक मार्केटिंग है, इट इज जानबूझ के विद होल्ड करना गुड को इन द मार्केट टू क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज। अब एग्जाम्पल इसका जैसे आईफोन का आप देखिए, अभी जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है, तो आई हैव बीन आल्सो लुकिंग फॉर इट, बट वो मिल नहीं रहा है, इट हैज शॉर्टेज। तो ऐसा नहीं है पहली बार उसकी डिमांड हुई है, हर साल होती है, बट वो डेलिबरेटली एक वो शॉर्टेज बना के रखते हैं एक अपना, just to create that hype. No, Bhuvan, supply chain and logistic are different thing, which I've explained. सप्लाई चेन आपका नेक्स्ट यूनिट है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा भुवन। सब नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट ये कंप्लीट हो गई है टुडे, सो नेक्स्ट यूनिट में यू विल अंडरस्टैंड व्हाट सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, हाउ इट इज डिफरेंट। सप्लाई चेन इज एन एंटायर प्रोसेस, लॉजिस्टिक इज लाइक प्रोडक्ट रेडी होने से लेके कंज्यूमर के हाथ में जाना, बट इन डिटेल वील एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप भुवन, रिया, you guys are clear. Costing, Rakesh Kumar is asking costing of container route known to a logistic manager. मतलब costing of container. Okay. PDF यार, अब शशि you should ideally check with your course coordinator. अगर वो मुझे बोलेंगे तो I can give, but I don't have your contact, guys. So I will ask. You can reach out to your coordinator and I can provide it to them. Shashi, I hope it's clear. And Rakesh is asking costing of container रूट नोन टू अ लॉजिस्टिक मैनेजर। थोड़ा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, बट कॉस्टिंग ऑफ कंटेनर मतलब जो भी कंटेनराइजेशन के लिए हमने यूज किया था, तो कॉस्ट होता है, तो ऑफ कोर्स जब वो स्टार्टिंग में हम वो खरीदेंगे तो इट विल बी जस्ट इनिशियल कॉस्ट है, वो थोड़ा हाई रहता है कंपनी के लिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, बट ऑफ कोर्स टाइम के साथ व्हेन द कंप्लीटली बैचेस गोज ऑफ, वो बैलेंस हो जाता है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर Q&A। आई थिंक वी कैन ऑलवेज टेक इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो।